Hello students, today we will study the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. Focus on the two words elegy, written in a country churchyard. It means that this poem is an elegy, and where it is written in a country churchyard. And by whom? By Thomas Gray. Let's have a little introduction of Thomas Gray. He was born on December 26 in 1716 and his birthplace was London. He died on July 30 in 1771. Location of his death is Cambridge in Cambridgeshire, England, and his remains is buried at St. Giles Churchyard, Stoke Poges, Buckinghamshire, England. His early life. He was the fifth of 12 children, the only child of Philip and Dorothy Gray to survive infancy. He lived with his mother after she left his abusive father. His education. He was educated at Eton College, where his uncle was one of the masters, a delicate and scholarly boy who spent his time reading and avoiding athletics. Three close friends at Eton were Horace Walpole, son of the Prime Minister Robert Walpole, Thomas Aston, and Richard West. In 1734, he went to Peterhouse, Cambridge, and there he left without a degree. The receipt of legacy from his paternal aunt meant that he had no urgent need to find a job. His poetry. In 1745, when he was 29 years old, his friendship with Walpole was renewed. Horace Walpole admired his poetry and persuaded him to publish. 1747, when he was 31 years old, Ode on a Distant Prospect of Eton College, Ode on Spring, Ode on Death of a Favorite Cat, Drowned in a Tub of Cold Fishes. These poems were written. His Elegy on a Country Churchyard took him 9 years before it was published. He had written the poem from 1742 to 1751. In 1757, The Bard and the Progress of Poesy were written. Northern Nicholas, his love interest, and ungraduated whose knowledge of Dante impressed him. In 1751, A Journey Among the English Lakes. In 1768, when he was 52, he written Fatal Sisters, The Descent of Ordines, and The Triumphs of Owen. His last years. In 1751, he proposed to visit Bornstein in Switzerland during the summer, but was struck by a sudden illness and died after a few days. He was buried in St. Giles Churchyard in Stoke Poges, next to his mother. Now have a little introduction of the poem Elegy written in a country churchyard. This poem is written in early 18th century, and these poetries are known as pre-romantic poetry. What were the characteristics of the pre-romantic poetries? The age of early 18th century was under the rule of King William III. There were two political parts at the parliament. They were against each other, the part of constitute and the part of the right. The part of constitute was with the Catholic King James II, while the right part made a revelation in the year 1688 and took off the king. By this William III, who was a prince at Holland, became the King of England. In the year 1707, Scotland and England made a union to see or to have recalled the Great Britain.
In 1759 there was a war called 7-Year War, and the general of this war have recited to his officers from Grace Elegy written in a country churchyard. About the poem. This poem consists 128 lines. It is about the subject of human mortality. The subject of this poem is human mortality. The speaker urges the reader to remember him or his human frailty, that he is indeed common with every man. Poem invokes the classical idea of memento mori, a Latin phrase which states plainly to all mankind, remember that you must die. In that there is no difference between great and common people. It idealizes and elevates the common man. Now start the poem Elegy written in a country churchyard. The view of the churchyard might be like this. You can see the picture that it is a graveyard and it is very ruined and situated in some nearby village or a hidden place. There is another picture where we can see the view. It is completely ruined. Now begin the poem. This poem is an elegy. Elegy written in a country churchyard is, as the title indicates, is an elegy. Such a poem centers on the death of a person or persons and is therefore somber in tone. इलेजी एक शोक गीत होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पे गाया जाता है और इसलिए इसकी टोन बहुत ही गंभीर होती है. एन इलेजी इज़ लिरिकल रादर देन नैरेटिव. यह जो इलेजी है यह वर्णनात्मक है लिरिकल होने की बजाय. दैट इज़ इट्स प्राइमरी पर्पज इज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इंसाइट अबाउट इट्स सब्जेक्ट रादर देन टू टेल ए स्टोरी. और इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी भावनाओं को प्रकट करना बजाय कि किसी स्टोरी के बारे में बताने की. टिपिकली एन इलेजी एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ लॉस एंड सोरो while also praising the deceased and commenting on the meaning of the deceased time on earth. एक इलेजी है जो फीलिंग व्यक्त करती है दुख की और शोक की और साथ ही साथ उस व्यक्ति जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके ऊपर कमेंट करते हुए उसके गुण के बारे में बताती है, उसकी जो खासियत थी या विशेषता थी जब वो जीवित था उसकी लाइफ टाइम के बारे में बताती है. मेमेंटो मोरी, दिस इज़ ए लैटिन फ्रेज. इट मीन्स दैट रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई. ये जो पोइम है या इलेजी है वो स्पष्ट संकेत देती है कि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे या आप भी इस दुनिया में नहीं रहोगे. ये जो इलेजी कवि ने लिखी है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी गई है बल्कि ये पूरी मानवता को इंडिकेट करती है, संबोधित करती है. और मुख्य रूप से जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो विलेजर्स है, जिनकी जो आइडेंटिटी होती है ऑलमोस्ट हिडन होती है, जो कि पब्लिकली नोन नहीं होते हैं, उनके लिए लिखी गई है. द पोएम बिगिंस द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. The loving herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of parting days. कर्फ्यू एक तरह की यहाँ पे कर्फ्यू का यूज़ है. कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. टॉल्स एक साउंड होती है या घंटी की टोन होती है जो कि चर्च में बजाई जाती है. एंड हेयर इज़ द साउंड फॉर कर्फ्यू. कर्फ्यू मीन्स इन दोज डेज दैट वर वार डेज एंड कर्फ्यू वर इम्पोज्ड एंड ड्यू टू दिस पीपल वर ऑर्डर टू extinguish the light and fire in their homes. And the knell of parting day. knell means ये भी एक घंटी होती है जो कि चर्च में बजाई जाती है, लेकिन किसी की मृत्यु पर, किसी की मृत्यु हो जाती है तब जो घंटी बजाई जाती है उसे नेल कहते हैं. ऑफ पार्टिंग डे यानी कि जो चर्च स्थित है वहाँ से आवाज़ आ रही है. जो पार्टिंग डे, जो दिन ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हो गई है,
उसके लिए शोक में घंटी बजाई जा रही है और कर्फ्यू की आवाज़ भी आ रही है। कर्फ्यू के लिए जो टोल बजाई जा रही है या ध्वनि बजाई जा रही है उसकी भी आवाज़ आ रही है। द लोविंग हर्ड विंड्स स्लोली ओवर द ली। लोविंग हर्ड, हर्ड मीन्स जो पशुओं के झुंड होते हैं। लोविंग मीन्स घास चरते हुए धीमी अवस्था में। विंड्स स्लोली ओवर द ली, जो घास के मैदान है, ली मीन्स घास के मैदान है, उनके ऊपर होते हुए। विंड्स, विंड्स यानी कि हवा बहना। और ये शब्द ट्रांसफर्ड एपिथेट है जो कि पशुओं के लिए भी यूज़ किया गया है और हवा के लिए भी यूज़ किया गया है। स्लोली मीन्स बहुत ही धीमी गति में पशुओं के झुंड हैं जो चारा चरते हुए घास के मैदान के ऊपर से गुजर रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लोमैन्स मीन्स जो हल चलाने वाला व्यक्ति है, किसान है। होमवर्ड अपने घर की तरफ, प्लॉट्स हिज वेरी वे घर की तरफ कदम उठाते हुए जा रहा है। हिज वेरी वे उस अपने थके हुए रास्ते से। यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक तरह से लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें किसी शब्द का यूज़ उस व्यक्ति के लिए ना करके या उस विशेषण का यूज़ व्यक्ति विशेष के लिए ना करके किसी और वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्लोमैन है, थका हुआ प्लोमैन है, और वेरी वे रास्ता थका हुआ नहीं है, किसान थका हुआ है, लेकिन शब्द का यूज़ किया गया है रास्ते के लिए। तो जो थका हुआ किसान है वो हल चलाने के बाद, खेत जोतने के बाद अपने घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जो पूरा दृश्य है वो अब लगभग सुनसान सा हो चुका है। सारे जानवर और जो किसान हैं वो अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, और जो ये संसार है या जो क्षेत्र है उसको मेरे लिए अंधेरा या अंधकार में डूबने के लिए छोड़ दिया है, या मैं धीरे धीरे शाम को ढलते हुए देख रहा हूँ। इस फर्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है एक तरह से एनवायरनमेंट सेट करता है और बहुत ही सोरोफुल टोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि द डे इज़ पार्टिंग एंड वी कैन हियर द साउंड ऑफ नेल एंड टोल्स। दिस कुड बी द पिक्चर दैट might suit that the lowing herds is returning to the home, and this is the picture that I have shown before. It is can be suitable for the country churchyard where the poet is sitting and seeing the view. Next the poet says that now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and rosy tinkling lulls the distance fold. Now fades the glimmering landscape on the sight. चूँकि अब धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ रही है, अंधेरा हो रहा है, शाम ढल चुकी है, तो नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, जो अभी तक लैंडस्केप या भूमि जो कि ग्लिमरिंग हो रही थी या चमक रही थी सूर्य की रोशनी से, वो धीरे धीरे गायब हो रही है ऑन द साइड्स, आँखों के सामने से। एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस होल्ड, और जैसे ही अब इवनिंग हो चुकी है तो चारों तरफ हवा में एक सन्नाटा छा गया है, स्टिलनेस आ गई है, यानी कि चारों तरफ शांति सी फैल गई है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, लेकिन यदा कदा यहाँ कहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, और वो आवाज़ें क्या हैं जो इस हवा की शांति को भंग करती हैं, वो हैं बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। जो बीटल एक तरह का कीड़ा होता है, व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, वो इधर उधर हवा में अपने पंखों की मदद से उड़ रहा है और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड रोजी टिंकलिंग लव द डिस्टेंट फोल्ड, और दूर स्थित जो बाड़े हैं जहाँ पे पशु बंधे हुए हैं और कैसे हैं, ड्रोजी यानी कि ऊँग रहे हैं, और ऊँगने के कारण उनके गले में जो घंटियाँ बंधी हुई है उनसे टिंकलिंग की आवाज़ या उनकी टनटनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर द मोपिंग owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary realm। और इसके अलावा और जो आवाज़ आ रही है जो कि इवनिंग की शांति को भंग कर रही है वो है सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, जो दूर स्थित आईवी मेंटल टावर है। आईवी एक तरह का पेड़ होता है, योंडर मीन्स सामने स्थित, मेंटल टावर जो कि बहुत ही ऊंचा है, और उस पे स्थित द मोपिंग ऑल,
ऑल मीन्स उल्लू, मॉपिंग जो शोकग्रस्त है, डस्ट टू द मून कंप्लेन, वो कभी कभी मून से या चंद्रमा से कंप्लेन कर रहा है। ऑफ सच एज, जैसे कि वेंडिंग नियर हर सीक्रेट बावर, जैसे कि चंद्रमा है जो उसके जो सीक्रेट बावर है या जो उसका सीक्रेट स्थान है वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा हो। एंड मोलेस्ट हर एंशियंट सोलेटरी रेन, और जो उसका बहुत प्राचीन स्थित शासन है, जो उल्लू का बहुत प्राचीन स्थित शासन है, उसको क्या कर रहा है, छेड़ने की कोशिश कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो उल्लू है बार बार मून से कंप्लेन कर रहा है। तो जैसे ही शाम हो रही है, एक तरह का पूरा दृश्य यहाँ पे क्रिएट होता है कि पशु हैं और जो फार्मर्स हैं वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। शाम ढल रही है और धीरे धीरे जो ग्लीमिंग लैंडस्केप है वो दिखाई देना बंद हो जाती है। हवा में एक शांति छा जाती है और उसके साथ ही बीटल्स, आउल्स और दूर स्थित जो डिस्टेंटिंग फोल्ड हैं वहाँ से ड्रॉजी टिंकलिंग की आवाज़ आने लगती है। The setting. The poem takes place at dusk within a country churchyard or cemetery. This adds to the symbolic nature of the poem. The setting of the sun is one's own life. यहाँ पे जो कविता की सेटिंग है वो डस्क या इवनिंग के समय करी गई है, रखी गई है, और वो भी कहाँ, एक चर्च यार्ड में। वो भी चर्च यार्ड ऐसा है जो कि बिल्कुल रूइंड है, और इसमें जो शोक की भावना है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि द डे इज़ पार्टिंग एंड वी हियर द साउंड ऑफ नेलिंग एंड टोलिंग। द ओल डिपिक्ट्स दोज हु आर इंट्रूड अपॉन बाय डेली लाइफ और द आउटसाइड वर्ल्ड। Here she hears the beetles droning fight and the cow bell, both of which are remains of the hurried quality of modern life. यहाँ पे ऑल जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भी एक शोक का प्रतीक माना जाता है। एंड बीटल्स उसकी ड्रॉनिंग फ्लाइट एंड काउ बेल्स दूर स्थित डिस्टेंट फोल्ड में जो पशु हैं उनकी टिंकलिंग की या उनके गले में जो बंधी हुई घंटियाँ उनकी आवाज़ आ रही है। द cemetery is described as a narrow cell that houses the bodies of those who once lived in this tiny hamlet bucolic existence। और यहाँ पे जो सिमेट्री या चर्च यार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है एज ए नैरो सेल के रूप में, वो हमें याद दिलाता है कि ये व्यक्ति कभी जीवित थे और आज इनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, वो यहाँ या उनकी बॉडीज़ यहाँ पे दफन है। नेक्स्ट द पोइट सेज दैट beneath those rugged elms that yew trees shades, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cells forever laid, the rude forefather of the hamlet sleep। सेटिंग रखने के बाद या सेटिंग पोइम की सेटिंग करने के बाद वहाँ का व्यू बताने के बाद पोइट है जो अपनी मुख्य थीम पे लौटते हैं और बात करते हैं कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, जो दूर स्थित या चर्च यार्ड में स्थित जो रग्ड एल्म्स है, एल्म्स मीन्स ये एक ट्री का नाम है और जिनकी जो तने हैं वो बहुत ही रग्ड या खुरदरे हैं। एंड दैट यू ट्रीज शेड्स, और जो दूर स्थित यू ट्रीज़ हैं ये भी एक प्रकार की ट्री का नाम है, यू, उनकी छाया में। वेयर हीव द टर्फ इन मैनी माउल्डिंग हीप्स, और जहाँ पे हीव मीन्स बहुत मात्रा में इकट्ठी हो जाना, द टर्फ इन मैनी ए माउल्डिंग हीप, टर्फ मीन्स घास, इन मैनी ए माउल्डिंग हीप, माउल्डिंग मीन्स गोल या गुम्बदाकार में जो बने हुए हीप हैं, ढेर है मिट्टी के, उनके ऊपर बहुत मात्रा में घास उग रही है। एंड ईच इन हिज नैरो सेल्स फॉर एवर लेड, और प्रत्येक व्यक्ति इन हिज नैरो सेल, अपनी छोटी छोटी जो सेल्स हैं उनमें हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? द रूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, जो रूड फोर फादर्स हमारे जो पूर्वज हैं, लेकिन कैसे हैं? रूड, बहुत ही अनभिज्ञ, अज्ञानी और अनपढ़ लोग, ऑफ द हेलमेट, जो इस हेलमेट जिसमें चर्च यार्ड स्थित है उसकी बात करते हुए पोइट कहते हैं कि वो अपनी नैरो सेल्स में हमेशा के लिए सो रहे हैं। यहाँ पे पोइट है जो बताते हैं कि जो दूर स्थित एल्म्स ट्री है, यू ट्रीज़ हैं, और जिनके नीचे जो माउल्डिंग हीप हैं, जिन पे की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घास उगी हुई है, उन नैरो सेल्स में, उन छोटी छोटी कब्रों में जो फोर फादर्स हैं इस हैमलेट के या इस छोटे से कस्बे के, जो फोर फादर्स हैं जो कि बहुत ही रूड या बहुत ही अनपढ़, अज्ञानी थे, वो हमेशा के लिए चिरनिंद्रा में सोए हुए हैं।
the breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. Now the poet says that the breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The forefather of the blaze are laid forever. वो हमेशा के लिए सोए हुए हैं, यानी कि जो फोरफादर हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं। और अब जो ब्रीजी कॉल है, यानी कि सुबह की जो बहुत ही ब्रीजी या ताज़ी हवा है, ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह सुबह की जो बहुत ही ताज़ी ब्रीदिंग हवा है, वो ना ही स्वेलो ट्रीटिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सीड, जो दूर स्थित स्ट्रॉ छोटे छोटे घास के तिनकों से बने हुए उनके जो घोंसले हैं, उनमें से जो स्वेलोज़ या चिड़ियाओं के ट्विटरिंग की या चहचहाने की आवाज़ आ रही है वो, और ना ही कॉक्स श्रिल क्लेरियन, सुबह सुबह जो मुर्गा बांग देता है उसकी तीखी आवाज़ है वो, और ना ही द इकोइंग हॉर्न, ना ही जो गूंजने वाला उसका जो हॉर्न है, जो कि मुर्गा सुबह सुबह बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है, वो सारी चीज़ें मिलके नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। अब ये सारी चीज़ें मिलके भी उन्हें अपने उस बेड से नहीं उठा सकते जहाँ पे वो हमेशा के लिए सो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ना तो स्वेलो की ट्विटरिंग, ना ब्रीजिंग मॉर्न, और ना ही कॉक की श्रिल क्लेरियन, ये सब चीज़ें मिलके उन्हें अब उस कब्र से नहीं जगा सकती है जहाँ वो हमेशा के लिए सो रहे हैं। For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewives play her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. The poet says that for them no more the blazing hearth shall burn, यानी कि अब उनके लिए कोई भी हाथ या चूल्हा नहीं जलेगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो बिजी हाउस वाइफ यानी जो घरेलू महिलाएं जो शाम के समय अपने काम में बिजी रहती हैं, वो कोई काम नहीं करेंगी, ना ही कोई उनका इंतज़ार करेंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और ना ही कोई चिल्ड्रन या बच्चे हैं जो भाग के सायर्स रिटर्न अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए दौड़ेंगे। सायर मीन्स फादर, जो कि खेत से काम करके लौट रहे हैं और उनकी गोदी में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं, वो बच्चे अब कभी उनकी गोदी में चढ़ने के लिए नहीं दौड़ेंगे। और क्लाइम हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, और जो कि अपने पिताजी के घुटनों पे चढ़ जाते हैं और एनविड किस टू शेयर, अपने पिताजी से जो किस चाहिए होता है, जिसके लिए आपस में सारे भाई बहन झगड़ते हैं, तो वो चीज़ें अब कभी नहीं होगी। यानी कि शाम के समय जो मोस्टली व्यू होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको पोइट ने दर्शाया है कि अब जब वो फार्मर्स जब लौटते थे अपने काम से, उनके लिए शाम के समय जो चूल्हा जलता था, और जो इवनिंग के समय जो हाउस वाइफ्स खाना बनाने में या घर के काम करने में बिजी रहती थी, और जो बच्चे जैसे अपने पिताजी लौटते थे उनकी गोदी में चढ़ के उनसे जो किस चाहिए होता है उसको शेयर करने के लिए अब कभी नहीं झगड़ेंगे। ये सारी चीज़ें अब उनके लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट आर लैड फॉर एवर इन देयर नैरो सेल्स। So this is the part first of Elegy written in a country churchyard. We will study the remaining of the poem in next part. Thank you.